रिप्लाई करते जाना है, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स इज विच वन ऑफ दीज? CCF, old MI, hyperkalemia, ischemic heart disease, pleuritis. Old MI. Pituitary tumor involved which bone? Frontal bone, sphenoid bone, cribriform, ethmoid, temporal. Sphenoid. The serology test for aspergillus is galactoman, galactoprotein, phospholipid A. SK हम लोग कर रहे हैं SK 1 to 17 सेक्शन 3, और कल जो हमने 200 MCQs किए थे 200 to 400 वो अभी हम रिवाइज करें, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। Which organism is transmitted in blood transfusion? Hepatitis A, B, C, D या E? इसका आपने सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस वाइज आप बताएं कि कौन से होते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी से भी पहले कौन सा आएगा? साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। Cell increase in worm infestation is neutrophil, macrophage, plasma cells, eosinophils. Fetal period starts from beginning of 7 week, 8 week, 9 week, 10th week. 9. When P wave is not present in ECG, where is pacemaker located? SA node, AV node, bundle of his Purkinje fibers. AV node. Maximum amount of lipoprotein is present in LDL, VLDL, chylomicron, HDL. Heart rate increases, it will affect which phase of the cardiac cycle? Rapid ejection, slow ventricular filling, rapid filling, reduced ejection. Man standing in bus suddenly moves, man does not fall, how balance is maintained? ठीक है। और लिफ्ट के अंदर कौन सा होता है? लिफ्ट के अंदर बैलेंस कौन मेंटेन करता है? सेक्यूल, ठीक है। सेलुलर वॉल्ट इज रेगुलेटेड बाय एंडोसाइटोसिस, अपोप्टोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और द डायग्नोसिस ऑफ स्पाइना बाइफिडा, आप एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर किस चीज़ का लेवल रेज्ड होगा? बीटा HCG, अल्फा फिटोप्रोटीन, एस्ट्रायोल, इनहिबिन। Type 1 diabetes mellitus, there is mainly destruction of alpha cells of the pancreas, beta cells of pancreas, delta cells of pancreas, PP cells of pancreas. Muscle causes E version of the foot is tibialis anterior, peroneus longus, tibialis posterior, extensor digitorum longus, peroneus longus. Minor calyces receive urine from major calyces, pelvis, ureter, DCT, papilla. Intravascular coagulation first activated factor is 12, 8, 9 या 2. Intrinsic factor है तो 12 से होता है. Right side upper and lower limb paralysis and tongue deviated artery involved is anterior cerebral artery, anterior spinal artery, posterior cerebral artery. एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जब भी टंग इन्वॉल्व होगी तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ विट्रस ह्यूमर इज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज, एनाइन, केटाइन, वाटर। विच वन हैज एक्टोडर्मल ओरिजिन? CNS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, GIT, CNS. Diffusion depend on the size of particle. Which one has relatively high diffusion capacity? Water, glucose, sodium, potassium chloride. Common cause of DVT is hypertension, diabetes mellitus, trauma, prolonged immobilization. ठीक है। A young girl find it hard to hear at low frequency of sound. What type of hearing loss is? Sensory, conductive, mixed, earwax. ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी अगर लॉस हो जाए तो कंडक्टिव होगा, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आपको आना ख़त्म हो जाए देन इट्स सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. एंटीकोआगुलेंट डिक्रीज इन प्रेगनेंसी इज एंटीथ्रोमिन 3, फैक्टर A, 10 या प्रोटीन S? प्रोटीन S. A young girl 11 years came to OPD with fixed dilated left pupil. The most likely damage is of किस नर्व का डैमेज हो रहा है? फिक्स डायलेटेड प्यूपिला, थर्ड नर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 157, MCQs नंबर 401. साइक्लिक GMP सेकेंडरी रिसेप्टर्स के ऊपर कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं? ANP. और दूसरा कौन सा होगा?
ANP के साथ BNP होते हैं, ठीक है। एडिसन डिजीज में पेशेंट प्रेजेंट इन विच इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। तो जब एडिसन क्राइसिस होते हैं पेशेंट कोमा में चला जाता है, ठीक है, तो ये बहुत सीरियस इमरजेंसी कंडीशन होती है। 403 विच एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल, तो कौन से ऐसे एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करती है? पेंसिलिन। बॉय कट हिज फिंगर एंड डेवलप फीवर एंड एब्सेस ड्यू टू विच, ठीक है। अब जब भी फिंगर कट की बात आ रही है तो इसमें किस तरह की नेक्रोसिस होती है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस किस में होती है? वेस्कुलाइटिस में, ठीक है। और फैट नेक्रोसिस इसकी एग्जांपल बताएं। पेंक्रियाज में और ब्रेस्ट के अंदर ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस, और कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में हार्ट आ जाएगा, ठीक है। 405 पैरोटिड डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? बक्कल स्पेस के अंदर ओपन होती है। रीजनरेटिव सेल्स ऑफ द ब्रेन कौन से होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ए प्लास्टिक अनीमिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें, अच्छा अब इसमें ना फैटी मैरो को आपने चूज करना है। अगर आपके पास, अब देखें ऑप्शन अल्फा में पैनसाइटोपिनिया भी है, तो हम सबके माइंड में मोस्टली पैनसाइटोपिनिया ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर फैटी मैरो आए तो आपने फैटी मैरो को चूज करना है एज कम्पेयर टू पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, मिक्स नहीं करना आपने। 408 ए पेशेंट प्रेजेंट विद कोरिया मेंटल रिटार्डेशन डिप्रेशन एंड मेमोरी लैप्स द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये कौन सी है? हंटिंगटन डिजीज है, ठीक है। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये एमसीक्यूज एग्जाम में आया था। मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और मैयर डिफ्यूजन किससे करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से। बोन रिमॉडलिंग इज डन बाय कौन से सेल्स करते हैं? ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ये आपने जो एग्जांपल्स में सारे एमसीक्यूज हैं सारे आपने करने हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो हैं ये बोन रिजॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। ओस्टियोसाइट्स हैं ये बोन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और पैराथायरॉइड हार्मोन बोन की डीमिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैल्शियम और सारा जो फॉस्फेट और विटामिन डी वगैरह को, विटामिन डी भी बोन की मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, और विटामिन सी बोन की रिमॉडलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। 411 फेशियल नर्व सप्लाई टेस्ट टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग वाया कोडा टिम्पनाई टेस्ट फाइबर, ठीक है। तो ये कौन से स्पेशल विजरल एफरेंट फाइबर्स हैं, ठीक है। चाइल्ड हैज कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियन मेगाकोलॉन, व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ द नर्व, ठीक है। तो मेगाकोलॉन की रूट वैल्यू कौन सी होती है? S2 to S4। विच ड्रग डिक्रीजेज द ट्राइसाइक्लिसराइड लेवल द मोस्ट, ठीक है। कौन सी ड्रग है जो टैक्स के लेवल को सबसे ज़्यादा डिक्रीज करती है? फिनोफाइब्रेट्स। 414 चाइल्ड हैज़ पेप्यूल्स रैश स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड द ईयर एंड स्प्रेड टू द होल बॉडी, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? मीजल्स का सिनेरियो है, ठीक है। मीजल्स में अगर आपने देखा हो तो बच्चे के जो रैश होता है ना वो कानों के पीछे से होता हुआ सारे ट्रंक पे और देन पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। साथ फीवर की हिस्ट्री होती है। पॉइंट दैट डिस्टिंग्विश पार्शियल ट्रांसलेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द कंप्लीट, ठीक है। तो स्पाइनल शॉक जो है वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, ठीक है। जो पार्शियल ट्रांसलेक्शन है ना उसमें बेसिकली हेमी सेक्शन हुआ होता है, कुछ सेंसेशन लॉस होती है कॉन्ट्रालैटरल साइड की, कुछ सेम साइड की, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब स्पाइनल शॉक कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसलेक्शन हो जाता है तो बेसिकली स्पाइनल शॉक डेवलप हो जाता है और बाकी सारी जो सेंसेशन होती है वो परमानेंटली लॉस हो जाती हैं, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अकर कॉमनली इनकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन होता है? आईवी ड्रग एब्यूज़र। और आईवी ड्रग एब्यूज़र का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ये एस ऑरियस, स्टैफ ऑरियस। 417 in histological slide serous acini with stratified epithelium in ducts। तो duct से आपको क्या पता चलता है कि कोई ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लाइनिंग डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। अच्छा ये आपने नीचे दोनों याद करनी है कि स्वेट ग्लैंड के अंदर क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और सलाइवरी ग्लैंड में स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हिस्ट्रो वाले पेजेस है ना वो आप अच्छे से ना मतलब चाहे रट्टा मार लें, मतलब वो चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज एस डिटो आते हैं। ए पेशेंट आफ्टर RTA हैविंग लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस लोकेशन अफेक्ट विल बी, ठीक है।
तो लेफ्ट साइड के अंदर लीजन आ रहा है ना, तो राइट साइड का हेमीप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। इंजरी टू द पायरामिडल फंक्शन लॉस विल बी, ठीक है। तो पायरामिडल ट्रैक में सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मोटर सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। 421 an 8-year-old patient present to the clinic with periorbital edema. His labs show protein greater than 3.5. तो उसका प्रोबेबली कॉज क्या है कि एल्ब्यूमिन सारा लॉस हो गया और सोडियम की रिटेंशन हो गई है, ठीक है। एडिमा की कॉज पूछी हुई है ना उसने, प्रोटीन एनीमिया भी हो गया उसे, ठीक है। 422 आफ्टर स्वेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन द होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो स्वेटिंग के बाद इलेक्ट्रोलाइट कौन सी चीज़ जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होता है, सोडियम, ठीक है। 423 अच्छा एडिमा बेसिकली, अच्छा दोबारा इसको एमसीक्यूज के करते हैं। 8 साल का बच्चा है, प्रेजेंट करा क्लिनिक में पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ठीक है। तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा बेसिकली ये सारा जो होता है ना नेफ्रिटिक डिजीज़ में, ठीक है। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि एल्ब्यूमिन जो है वो बॉडी से लॉस हो गया है, ठीक है। एक होती है नेफ्रिटिक सिंड्रोम, एक होती है नेफ्रोटिक। अगर आप नेफ्रिटिक की बात करें ना, एल्ब्यूमिन तो दोनों में लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो नेफ्रिटिक होती है ना, जो पहले वाली होती है, जिसकी एग्जांपल आती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो बच्चों में होती है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली सोडियम और वाटर दोनों की रिटेंशन हो रही होती है, उसके साथ प्रोटीन भी लॉस हो रही होती है, ठीक है। लेकिन इसने बताया हुआ कि प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5, ठीक है। तो पहले वाली मैंने आपको कंडीशन बताई है नेफ्रिटिक, लेकिन दूसरी होती है एक होती है नेफ्रिटिक, दूसरी होती है नेफ्रोटिक, ठीक है। तो नेफ्रोटिक के अंदर बेसिकली प्रोटीन यूरिया 3.5 से ग्रेटर होता है, ठीक है। पहले वाली के अंदर 3.5 से कम होता है, दूसरी वाली में 3.5 से ज़्यादा होता है। तो उसमें मेनली जो एडिमा का कॉज होता है वो एल्ब्यूमिन बॉडी से लॉस हो जाता है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। और सोडियम और वाटर की रिटेंशन तो हो रही है, ठीक है, लेकिन मेन कॉज है एल्ब्यूमिन जो है वो बॉडी से लॉस हो रहा है, ठीक है। 423 ऑन माइक्रोस्कोपी ऑफ लिम्फ नोड बायोप्सी स्पेसिमेन ग्रैनुलोमा विद केजियस नेक्रोसिस किसके अंदर होती है, टीबी के अंदर होती है। तो आप इसमें किस तरह के सेल्स होते हैं, आप टेस्ट क्या करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एसिड फास्ट बेसिलस। ये सर 100 से अबव है, किस डिजीज़ में होगा, मल्टीपल माइलोमा के अंदर। 425 नर्व सप्लाई ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। अच्छा अब जो लोअर 6 थोरेसिक होती है ना, ये दो मसल्स को सप्लाई करती है, रेक्टस एब्डोमिनस को और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को। लेकिन जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है ना, उसे 2 या 3 नर्व सप्लाई करी होती हैं। लोअर 6 थोरेसिक भी और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल, ठीक है, इसे तीनों नर्व सप्लाई करी होती हैं। प्राइमोडियल जम्प सेल्स कहाँ बनते हैं, एट द एंड ऑफ 3rd वीक। द ब्लड ग्रुप एंटीजन आर नॉट प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स। तो ये कितने वीक के ऊपर आती हैं, 20 वीक्स पे आती हैं, इससे पहले ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। थीटा वेव विल अपीयर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द स्लीप, ठीक है। तो थीटा वेव्स कब बनती है, नॉन रैम स्लीप 1 के अंदर, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीजेज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन दोनों डिक्रीज हो जाएंगी। ए पेशेंट हैविंग हेपेटाइटिस सी उसका पॉजिटिव है, LFT नॉर्मल है, PCR पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो आप उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट देंगे, स्टार्ट करेंगे इंटरफेरॉन से और रिबाविरिन से, ठीक है। ये आप दोनों ड्रग देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइब्यूटरी ऑफ पोर्टल वीनस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा वेन्स किसके साथ आ रही होती हैं, सुपीरियर रेक्टल वेन, ठीक है। और स्टमक से कौन सी आ रही होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये सारी चीज़ें किस में ड्रेन करते हैं, पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। और लोअर इसोफेगस जो वो वाली वेन भी होती है, इसोफेगस की भी, ठीक है। तो ये तीनों मिल रही होती हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ वेगोटमी ऑन द GIT। तो वेगोटमी का इफेक्ट क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, कि ये डिस्टल स्टमक की पेरिस्टालसिस को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है, और एसिड की सिक्रीशन को भी डिक्रीज कर देती हैं। वो हमने पढ़ा था कि थोरेसिक वेगोटमी में होता है। 433 an 18-year-old girl presented with epistaxis and ekmosis on the bone marrow aspirate. There is hyperplasia of megakaryocytes. The most likely diagnosis क्या है, अच्छा मेगाकैरियोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। अब लड़की है, ठीक है, उसमें एपिस्टेक्सिस हो रही है, एक्मोसिस हो रही है, बोन मैरो के अंदर मेगाकैरियोसाइट्स, एक तो प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है और वो थोड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। ये किस में होते हैं, ITP डिजीज़ के अंदर होते हैं। 434 56-year-old executive officer after eating burger with fries get lipid profile done after centrifuge
हिज प्लाज्मा अपीयर मिल्की वाइट। तो मिल्की वाइट किस चीज़ का, कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है? काइलोमाइक्रोन्स होते हैं। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी कहाँ से अराइज होती है? सेफनेस ओपनिंग से, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये पुडेंडल जो आर्टरी है ये किस ओपनिंग से पास करती है, ठीक है। तो ये सेफनेस ओपनिंग से आगे जाके, ठीक है। बेसिकली ये फेमरल आर्टरी होती है, ठीक है। तो फेमरल आर्टरी जब ये इस ओपनिंग से गुजरती है तो वो आगे जाके कौन सी आर्टरी, कौन सी ब्रांच होती है? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। ये थाइस से जब दोबारा लेग्स में जाती है ना पोस्टीरियर होके, तो ये वो वाली एनाटमी दी हुई है। 436 a patient presented with biliary colic pain. He was given dicyclomine at which receptor it will act, which it reduces smooth muscle contraction and relieve abdominal pain, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? M3 के ऊपर जाके एक्ट करवा रही होती है, ठीक है। एंटी स्पाज्मोटिक, वो पेन को रिलीव करने के लिए किस रिसेप्टर पे एक्ट करती है? M3 के ऊपर, ठीक है। और अगर उसने सिक्रीशंस को इनहिबिट करना है तो वो कौन सी होती हैं? M1 रिसेप्टर पे जाके वो एक्ट करेगी। 437 40-year-old housewife is suffering from gastric ulcer and toothache. A safe drug to give her relief from toothache would be, ठीक है। तो दांतों में दर्द है, उसे कौन सी ड्रग देंगे? पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा सेफ है क्योंकि उसे गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हैं साथ। तो पेन किलर आपने बेसिकली जो सबसे सेफेस्ट होती है ना वो कौन सी होती है? पैरासीटामोल। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? फेमरल आर्टरी की, ठीक है। हमने पहले भी किया था। और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? एक्सटर्नल आईलिड की, ठीक है। और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। 439 एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सोफ्थेल्मोस व्हिच इज ड्यू टू, ठीक है। तो ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या बन रही होती है? TSI एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये डर्मोपैथी भी कॉज करवाती है, ऑफ्थेल्मोपैथी भी कॉज करवा देती है। 440 सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस लीजन विद लॉस ऑफ ADH। अगर सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस के लीजन की वजह से ADH लॉस हो गया, ठीक है, तो अब पेशेंट में सिम्टम क्या आएंगे? वाटर जो है वो सारा यूरिन के अंदर लॉस हो जाएगा और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। 441 द एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट मीट एट कॉर्डल एंड। एक क्रेनियल एंड होता है, कॉर्डल एंड होता है। तो कॉर्डल एंड के ऊपर क्या बनाते हैं? क्लोइकल मेम्ब्रेन। 442 द टाइप ऑफ चेंज इन मेटाप्लेजिया। उसे क्या कहते हैं? जब भी मेटाप्लेजिया चेंज होता है तो वो उसके फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों तरह के चेंजेस शो हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एक्लेमेसाइजेशन एट हाई आल्टीट्यूड फॉलोइंग चेंजेस विल अकर, ठीक है। अब एक्लेमेसाइजेशन कहते हैं कि बेसिकली जब आप हाई आल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो लंग्स के अंदर कौन कौन सी तरह की चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या आता है? एक तो पल्मनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है और डिफ्यूजन भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये कुछ चेंजेस हैं वो हो जाती हैं इसके दौरान। ये मैंने आपको इसकी ग्रुप में पिक्चर भी सेंड किया, तो वो अपने सारी ना इस MCQs के साथ नोट डाउन कर लेने कि इस दौरान क्या क्या आपके पास चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है। 444 और पल्मनरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है, ठीक है। यहाँ डेल्टा में दिया हुआ है पल्मनरी वेजो डायलेशन, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है? पल्मनरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है और डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाती है और पल्मनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है। 444 पर्सन टेकन टू सियाचिन डेवलप डिस्निया पोस्ट 12 आवर्स, ठीक है। हमने कल भी किया था कि फर्स्ट 24 आवर्स में या 12 to 24 आवर्स में क्या होगा? पल्मनरी एडिमा। 5 to 6 मंथ के बाद सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाएगा। 445 55-year-old patient with generalized lymphadenopathy, platelet and TLC count was raised. Peripheral smear show mature lymphocyte. तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा? CLL होगा, ठीक है। अच्छा, CL आपने कैसे देखने के? एक तो इसमें मेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, दूसरा ये ओल्ड एज के अंदर होता है, ठीक है। 446 फंडामेंटल डिफेक्ट SLE के अंदर क्या आता है कि इसमें BOT सेल्स का फेलियर आ जाता है फॉर द टॉलरेंस ऑफ सेल्फ एंटीजन। 447 डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायग्नोज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में बेसिकली हम क्या करवाते हैं? उसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया वाला टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके थ्रू इसका डायग्नोसिस होता है। 448 वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियम। किसके थ्रू ट्रेवल करती हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। 449 a patient has repeated episodes of viral and bacterial infection which among the following will be present। तो इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? बेसिकली डाइजॉर्ट सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें थाइमस एब्सेंट होता है। ये हमने कल भी MCQs किया था कि इसका जो पैराकॉर्टेक्स है उसमें सेल कम बनेंगे, डिक्रीज सेल्स होंगे, ठीक है।
450 पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रीट मूवमेंट बाय पेंटर। तो पेंटर की जो बहुत फाइन मतलब बहुत नाजुक सा काम होता है ना, ठीक है, तो वो फाइन मूवमेंट्स कौन कैरी करता है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। 451 न्यूरॉन्स फ्रॉम सस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, तो वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। और ये किस डिजीज़ के अंदर होते हैं? इसका डिफेक्ट किस डिजीज़ में आता है? लीजन पार्किंसनिज्म में। साइक्लिक एएमपी रिक्वायर्स वर्ड फॉर द एक्टिवेशन। तो इसके लिए क्या चाहिए? रिसेप्टर्स चाहिए। रिगार्डिंग स्मूथ मसल्स विच इज़ ट्रू। स्मूथ मसल्स के लिए क्या चीज़ करेक्ट है? हैज स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस। 454 inflammation of portal triad that spills into adjacent lobules, band of inflammation extended between the portal areas and terminal hepatic veins with foci of liver necrosis। तो डायग्नोसिस क्या होगा? ठीक है, अच्छा आप देखिए मेनली जो लिवर के अंदर क्या होता है? पोर्टल ट्राइएड होता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, और जो इन्फ्लेमेशन है वो स्प्रेड कर गई है सारे हेपेटिक वेन्स के अंदर, ठीक है, और लिवर के अंदर नेक्रोसिस होगी। इसका मतलब है कि ये कोई अभी शॉर्ट इन्फेक्शन है, ये क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस चल रहा है, ठीक है, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस इसकी सिनेरियो है ये सारा। 455 रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वुड रिजल्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वुड रिजल्ट इन हाइपरकैलेमिया। ठीक है, हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाएगा और उसमें कंसनट्रेटेड यूरिन भी आ जाता है। हाइपरकैलेमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं। 456 पेशेंट हैज़ एटेक्सिया व्हेन आस्क्ड टू वॉक व्हाइल क्लोज आइज स्वेज बैक एंड फोर्थ वेयर इज द लीजन प्रेजेंट। ठीक है, अगर तो आंखें बंद करके एक पेशेंट गिर रहा है, इसका मतलब है जो लीजन है वो कहाँ आ रहा है? डोर्सल कॉलम के अंदर, ठीक है, और अगर पेशेंट की आइज ओपन है अगर तब वो गिर रहा है, इसका मतलब है लीजन कहाँ पे? सेरिबेलम के अंदर है, ठीक है। 457 विच व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डेड स्पेस। तो डेड स्पेस बेसिकली क्या करवाती है? कंडीशनिंग ऑफ द एयर, ठीक है। 458 रेड ब्लड सेल्स इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन कॉन्टेनिंग द यूरिया। व्हाट इज़ द रिजल्ट? ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या चेंजेस आएंगे? एक तो वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, पहले वो कम होगा, उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, फिर वो स्वेल होगा, देन लाइसिस हो जाएगी सेल की, सारा रप्चर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखें रेड ब्लड सेल्स पर, उसमें यूरिया भी हो, ठीक है। विच टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया में कौन सी एंटीबॉडीज बनती है? इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज कौन सी होती है? एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज। 460 डायग्नोसिस ऑफ गोनोकॉकस इज इजीली मेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें ग्राम स्ट्रेन हम करवाते हैं। 461 पोस्ट एमआर डेथ 4 डे पे फाइंडिंग आपको क्या आएगी? नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। 462 10 years ओल्ड चाइल्ड विद द हिस्ट्री ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म एंड सडन चेस्ट पेन। ठीक है, अब जब भी बच्चे के अंदर इस तरह की आपको हिस्ट्री आएगी तो आपने डिजीज़ कौन सी आती है? कावासाकी डिजीज़, ठीक है। और आपने ये एमसीक्यूज भी एग्जाम में आता है कि अगर बच्चा होगा तो उसमें चेस्ट पेन की वजह से अगर उसमें डेथ भी हो जाती है, ठीक है, तो डेथ की रीज़न क्या होती है? बेसिकली उसमें कावासाकी डिजीज़ डेवलप हो जाती है जो एओर्टिक एन्यूरिज्म करती है और आगे जाके ये मोर्टेलिटी भी कॉज करवा देती है, ठीक है। 463 ए चाइल्ड विद जनरलाइज्ड एडिमा ऑन यूरिन एग्जामिनेशन प्रोटीन यूरिया 2+ है, देयर इज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। व्हाट टाइप ऑफ डेपोजिट विल बी सीन। ठीक है, तो ये बेसिकली मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो इसमें कहाँ डेपोजिट्स जो हैं वो कहाँ पे होंगे? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स होंगे। मेम्ब्रेनस के अंदर सब एपिथेलियल होते हैं, सब एंडोथेलियल होते हैं, सब एंडोथेलियल होते हैं। चलिए हम ग्रुप में कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कौन से होते हैं? सब एपिथेलियल होते हैं ना, ठीक है। 464 following parts of the brachial plexus has branches that supply the extensor muscles of the arm। ठीक है, तो पोस्टीरियर कॉर्डर इसमें से नर्व कौन सी पास हो रही होती है? जो एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है? रेडियल नर्व। 465 ए विंडोर इज लिविंग अलोन नाउ presented with depression, mental confusion, anxiety. She also has tachycardia, convulsion, hyperreflexia। तो इसकी बेसिकली कॉज क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की उसने ओवरडोज ले ली, ठीक है। पहले उसे डिप्रेशन था ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स खा लो तो आपको उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं।
466 विच नर्व रन अलॉन्ग विद द रेडियल आर्टरी इन द फोरआर्म, तो कौन सी नर्व होती है? सुपरफिशियल रेडियल नर्व। ब्रॉडबैंड एरिया 3 to 1, ठीक है, हमने कल भी किया था। ये सारी क्या चीज़ रिसीव करती है? सोमैटोसेंसरी सेंसेशंस को रिसीव करती है। फोर 45 ईयर्स ओल्ड मेल विथ मास्क लाइक फेस, ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस कौन सा है? मास्क लाइक फेस है। रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड दिस इज ड्यू टू लीजन इन पार्किंसनिज्म, तो इसमें लीजन कहाँ आता है? बेसल गैंग्लिया के अंदर, ठीक है। तो इसमें आप रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? कॉर्डेट न्यूक्लियस, क्योंकि बेसल गैंग्लिया नहीं है ऑप्शन में। और लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियस है, ये क्या चीज़ कैरी कर रहा होता है? सेंसेशंस को। और जो न्यूक्लियस बेसिलस है वो किसके अंदर डिफेक्ट आता है? अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर। और जो लास्ट पे ऑप्शन है ना, डेंटेट न्यूक्लियस, वो किस में हेल्प कर रहा होता है? कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। 469 ग्रेनुलोमेटस लीजन इन द ब्लैडर आफ्टर फ्यू ईयर्स प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा, दिस इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो ये हिस्टोसोमा हीमाटोबियम होता है, ठीक है, ये वाला ऑर्गेनिज्म होता है जो ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, और अगर कुछ ईयर्स तक वो प्रोग्रेस करे तो वो कार्सिनोमा भी बना देता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक इनटू वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देते हैं? बेसिकली 38, ठीक है। ये आपने नीचे सारे एक दफ़ा एटीपी की जो कैलकुलेशंस है ना, इसे भी एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। वैसे मोस्ट कॉमनली यही एमसीक्यूज आता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? 38 बनते हैं। एरोबिक के थ्रू कितने बनते हैं? 30 बनते हैं। और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोन्स इन द मिडल ईयर इज टू, तो मिडल ईयर की बोन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एम्पलीफाई करती है साउंड के स्टिमुलस को। 472 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कौन सा होता है? एस ऑरियस, स्टैफ ऑरियस कॉज करवाता है। 473 द बेस्ट वे टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद द पेशेंट इज, तो सबसे पहले आप क्या करवाते हैं इसमें? आई थिंक इसका ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। आस्क हिज नेम, सबसे पहले हम रेपो डिवेलप करते हैं ना, नेम उससे पूछेंगे, देन एज, देन एड्रेस, ठीक है। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 474 a thalassaemic child took appointment from the dentist for tooth extraction but 2 days before he has developed deep jaundice dark colored HB उसकी 4.9 है, बहुत डिक्रीज है, इसका मतलब है कोई हीमोलाइसिस हो रही है ना, ठीक है, क्योंकि इसकी स्प्लीन भी इनलार्ज्ड है, MCV कम है और HB भी कम है। जब भी HB कम हो इसका मतलब है कोई हीमोलिटिक रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, तो हीमोलिटिक क्राइसिस चल रहे हैं। 475 female 17 years old with primary amenorrhea, absent secondary sexual characteristics on examination, well developed normal breast and blind vagina, ultrasound confirm absent of uterus, ठीक है। अगर यूट्रस एब्सेंट है इसका मतलब है कौन सी है? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम डेवलप हो गई है, ठीक है। तो इसमें कैरियोटाइपिंग कौन सी होती है? 47XY। ब्रूनर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो एक इसमें प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम में भी आया था एमसीक्यूज। ब्रूनर ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होते हैं? ड्यूडिनम में प्रेजेंट होते हैं। 477 ए बॉय फेल फ्रॉम द हाइट कंप्रेशन ऑफ द सोल ऑफ द फुट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर आप एक हाइट से एक बच्चा गिर रहा है, ठीक है, तो उसकी सोल के अंदर फुट में क्या चीज़ डैमेज हो जाएगी? उसकी आर्च, एंटीरियर आर्च ऑफ द फुट डैमेज हो जाएगी, ठीक है। 478 a patient has polyp on the nasal mucosa on examination polyp was covered with redness on histology what will be the scene, ठीक है। तो पॉलिप्स के अंदर बेसिकली किस तरह के सेल इंक्रीज होते हैं? इओसिनोफिलिया होते हैं इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, ये भी हमने पहले किया हुआ था, एमसीक्यूज रिपीटेड है। 480 लिगामेंट इंजर्ड ऑन हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द नेक, ठीक है, ये भी आपने किया हुआ है कि हाइपर फ्लेक्शन करेंगे तो लिगामेंट ऑफ द नेक, ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है या पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी नेक एंटीरियरली हाइपर फ्लेक्शन कर लेंगे तो जो आपका पोस्टीरियर साइड पे लिगामेंट ऑफ नेक की प्रेजेंट है वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन कर लें तो लिगामेंट कौन सा इंजर्ड होगा? एंटीरियर वाला या पोस्टीरियर वाला? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। 481 सोडियम बाइल एसिड ट्रांसपोर्ट किसके अंदर होती है? आइलियम के अंदर होती है।
482 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रोन टू इस्कीमिया? कौन होता है? न्यूरॉन्स। सबसे ज़्यादा इस्कीमिया के चांसेस पहले न्यूरॉन्स में होते हैं, फिर सेकंड, उसके बाद किस में होते हैं? हार्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन से ऑर्गन में होते हैं? सबसे लीस्ट लाइकली कौन सी चीज़ इफेक्ट होती है? स्केलेटन मसल्स। आई थिंक स्केलेटन मसल्स आएगा। अच्छा चलें एक दफ़ा कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आता है कि स्केलेटन मसल का शायद उसकी फिर स्टेटमेंट कोई और थी कि जो सबसे लीस्ट लाइकली इफेक्ट होते हैं ना, डबल ए के अंदर डबल सप्लाई ऑफ द लीवर की डबल सप्लाई भी होती है। चलें ये कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। वैसे स्केलेटन मसल का भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट थी। चलिए एक ग्रुप में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 483 ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल रिकॉर्डिंग मॉनिटर शो वी वेव ऑफ द एट्रियल प्रेशर अक्रिंग इन, ठीक है। तो वी वेव बेसिकली किस फेज को शो करता है? आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन फेज को, ठीक है। ये जेवीपी वाली कर्व भी आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेनी है कि ये किस वेव के अंदर होता है। अच्छा आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन फेज ये S1 में होता है या S2 होती है? हार्ट साउंड S2 होती है, ठीक है। और S1 में कौन सा ऑप्शन आएगा? ये आ जाएगा, डेल्टा वाला आ जाएगा, आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज आ जाएगी ना, डेल्टा आएगा, ठीक है। हाँ जी, उसमें ए वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन। अच्छा मैंने आपको ना ग्रुप में भी इसकी सारी पिक्चर्स सेंड कर दी, ठीक है। वो आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। जीवीपी वाले एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स ऑन द फिंगर टिप्स। तो फिंगर टिप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पेन वाले रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। 485 70 kg का मैन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका 200 है, बॉर्डर लाइन पे थोड़ा ज़्यादा ही है। क्रेटिनिन 0.8 है, 1:20 है। प्रोटीन यूरिया ऑफ 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लाइकोज यूरिया पॉजिटिव है। फास्टिंग ग्लूकोज जो है 88 एंड हाइपरटेंशन। द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन बेसिकली क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ जा रहा है वो। 486 a lady has ring like lesion rashes on the forearm, which one of the following is responsible, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस पहले बताएं, इसका डायग्नोसिस क्या होगा? लाइम डिजीज़, वेरी गुड, ठीक है। तो लाइम डिजीज़ का ऑर्गेनिज्म क्या होता है? टीयर टिक, ठीक है। थोड़े से कीड़े टाइप होते हैं, अगर उनका थोड़ी बाइट हो जाए तो रैश हो जाता है फोरआर्म पे। रिंग की तरह के लीजन जैसे बड़े बड़े गोल गोल सर्कल्स बन जाते हैं। विच स्ट्रक्चर इज इंजर्ड बिहाइंड द स्टर्नम? कौन सी आर्टरी होती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है। फॉर 88 कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इन चाइल्ड। तो बच्चों में हम क्या करवाते हैं? PCR करवाते हैं। और एडल्ट्स में क्या करवाते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट। और फॉलोअप पे क्या करवाते हैं? फॉलोअप पे CD4 काउंट। कार्सिनोमा ऑफ द स्किन ऑफ ग्लैंड पीनस विल स्प्रेड थ्रू। स्किन है ना, आपने याद रखना है, एज फॉर स्किन, एज फॉर सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स। इन विच लेयर ऑफ द ओरल म्यूकोजा आर स्मॉल साइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन, ठीक है। ओरल म्यूकोजा के अंदर साइवरी ग्लैंड्स किस लेयर के अंदर होते हैं? सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 491 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर AV नोडल डिले, ठीक है। तो हमने कल भी किया था कि AV नोडल डिले क्या करवा देगा? डायस्टोल पे इफेक्ट करेगा, स्लो वेंट्रिकुलर की फिलिंग के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी अफेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डायबिटिक किसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं? आर्टीरियोल्स पे, आइस के अंदर ये एक्ट करती हैं आर्टीरियोल्स के ऊपर, ठीक है। 493 माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट एट द एपिकल एंड ऑफ विच सेल्स, ठीक है। तो सिलिएटेड सेल्स के ऊपर, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना अपनी मूवमेंट के लिए। 494 a lady on anti-hypertensive drug suddenly collapsed with serum potassium 6.5, ठीक है। तो जब भी हाइपरकेलेमिया होता है किस डिजीज़ के अंदर होता है? क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर, ठीक है। लेडी विद हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया HbA और HbA2 की वैल्यू 4% है, ठीक है। तो डायग्नोसिस बेसिकली किस में होता है? थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर HbA2 पॉजिटिव आते हैं, ये वाली चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, HbA2, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरिबेलर न्यूप्लाज्म, इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? इसमें अटैक्सिया वाले सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर। 494 एक्यूट रीनल फेलियर,
अच्छा, इसका ना अभी एक बेसिकली अभी उन्होंने टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, तो जो सीरम पोटाशियम है वो एक्यूट रीनल फेलियर ही कॉज करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई आपको क्रेटिनिन वगैरह की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। अगर आप क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जाते हैं ना तो उसका 6 मंथ का टाइम पीरियड आता है, ठीक है। तो क्रॉनिक का स्नैरियो नहीं है, बेसिकली एक्यूट रीनल फेलियर जो AKI होता है ना, एक्यूट रीनल फेलियर, ये उसकी एग्जाम्पल के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्नैरियो ऐसा दिया हुआ है। अगर स्नैरियो में काफ़ी ज़्यादा और बाकी फाइंडिंग्स होती है तो हम बीटा ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब इसका ऑप्शन अल्फा ही करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs पे थे हम। बिबिन्स्की साइन इज ड्यू टू डैमेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया, ठीक है। तो ये किसके अंदर पॉजिटिव आते हैं, पायरामिडल ट्रैक्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें बिबिन्स्की साइन पॉजिटिव आता है। लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट तो कहाँ पे होते हैं, पायरामिड्स ऑफ मेडला, मेडला के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। वर्टिकल ग्रुप ऑफ इंग्वानल लिम्फ नोड, कहाँ से ये लिम्फेटिक अपने ड्रेनेज जो लोअर लिम्स है ना वो कहाँ ड्रेन करते हैं, वर्टिकल ग्रुप ऑफ इंग्वानल लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। ये लिम्फ नोड्स वाला भी एक MCQs एटलीस्ट इसमें से आ जाता है पेपर में। तो ये मैंने आपको फर्स्ट एड की इसमें पिक्चर भी सेंड की थी, ठीक है, वो आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। नेजल वेस्टिब्यूल की एपिथेलियम कौन सी होती है, ये डबल A का MCQs है। नेजल वेस्टिब्यूल की एपिथेलियम कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, हिस्टोलॉजी के ना अब आई थिंक 100+ MCQs हैं सिर्फ डबल A के अंदर, ठीक है, और एक पेज है डबल A के पल्स पॉइंट का। तो आप हिस्टोलॉजी वाली तो अपने फ्री डेज में ना कोई एक दिन निकाल के आपने अपनी हिस्ट्री तो पक्की कर लेनी, ठीक है, उसके MCQs बहुत आते हैं। कॉमन साइट ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर कहाँ पे होता है, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ से ड्राइव होता है, मेसोडर्म से, और एड्रिनल मेडुल्ला कहाँ से ड्राइव होता है, न्यूरल क्रस्ट सेल से। 503 ये हमने रिपीट किया हुआ है, ठीक है, कि इंटरनल जुगुलर वेन आफ्टर इमर्जिंग थ्रू जुगुलर फोरामेन, तो इसका इमीडिएट रिलेशन किसके साथ होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, और इनसाइड द जुगुलर फोरामेन किसके साथ होते हैं, रिलेशन असेसरी नर्व के साथ। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा होता है प्रेगनेंसी को कितने वीक्स तक, 1 to 8 वीक्स तक। 505 ए पेशेंट वाइल टर्निंग आइज टूवर्ड द लेफ्ट हैज़ मीडियल निस्टिग्मस नर्व इन्वॉल्व्ड, तो इसमें कौन सी नर्व, बेसिकली कौन सा मसल इसमें कौन सा डैमेज हो रहा है, लैटरल रेक्टस, ठीक है, तो इसमें एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज और हो रही है। 506 an old patient present with vertical diplopia had tilting blood vision also difficulty in coming downstairs, ठीक है। तो डाउनस्टेयर्स में हमने किया था कि 4th नर्व डैमेज है, ठीक है, लेकिन अगर 4th नर्व ऑप्शन में नहीं है तो आप 3rd को भी चूज कर सकते हैं, इसमें भी वर्टिकल डिप्लोपिया हो रहा है, ठीक है। 507 सुपरफिशियल फेशिया इज ए मिक्सचर ऑफ, इसमें लूज एरुलर और एडिपोज टिश्यू दोनों होते हैं, ठीक है। 508 पेशेंट प्रेजेंट विद डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेशन विद एब्डोमिनल पेन एंड क्रेटिनिन काइनेज नॉर्मल है। पल्सेशन, अच्छा, जब भी एब्डोमिन के अंदर एक मैस है और वो पल्सेटाइल है, ठीक है, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है। सिंपल सा है कि एब्डोमिन के अंदर पेन है, सिम्टम है, एक मैस है और वो पल्सेटाइल है, तो पल्स वाली कौन सी कंडीशन होती है, एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर एन्यूरिज्म डेवलप हो गया। 509 अच्छा, ये हमने MCQs पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप फ़ौरन खड़े होंगे तो 3 तरह के चेंजेस आएंगे। एक तो आपका वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट की कार्डिक आउटपुट रेज्ड हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, दोनों कंपनसेटरी चेंजेस होती हैं, ठीक है। और ब्लड जो है वो वीनस पूलिंग हो जाएगी तो वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। 510 ए मिडल एजेड मैन केम बैक फ्रॉम कार्डियो एंड डेवलप पेनलेस हीमोचूरिया, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा डेवलप हो गया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। 511 पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ कफ एंड हेमोप्टासिस, किडनी बायोप्सी, हाउ ग्रैनुलर डेपोजिट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विद C1q इज पॉजिटिव। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग किस में आती है, आपने इसमें हाईलाइट क्या करना है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो स्प्लिट हो रही है, ठीक है, तो वो किस में आता है, मेम्ब्रेनो प्लोरिफलेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, ठीक है। कफ और हेमोप्टासिस वो आपको बता रहे कि कोई नेफ्रिटिक डिसऑर्डर है। प्रेग्नेंट लेडी इन 30 वीक्स टेकिंग ओनली आयरन सप्लीमेंट्स शी विल बी डेफिशिएंट ऑफ, अच्छा, अगर फॉलिक एसिड होगा तो आपने उसको चूज़ करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में कैल्शियम होगा तो आपने कैल्शियम को चूज़ करना है, ठीक है। 513 पेशेंट इज अनएबल टू रोटेट फुट मीडियली बट कैन रोटेट लैटरली, तो कौन सी चीज़ है जो मीडियली रोटेट अब वो नहीं हो रही, यानी कि इन्वर्जन नहीं हो रही, तो इन्वर्जन के निमोनिक हमने क्या किया था, इसका टिप
tibialis anterior, posterior, I for inversion और P से peroneus. 514 a child has bald patch on the scalp since birth which is leathery sorry ठीक है. डेल्टोइड लिगामेंट किसके अंदर है? कौन से ऑप्शन का आप कह रही हैं डेल्टोइड लिगामेंट? अच्छा 513 का. अच्छा बेसिकली उन्होंने ना लिगामेंट की बात नहीं की हुई. लिगामेंट भी डैमेज होता है लेकिन यहाँ उन्होंने बात की हुई है मसल्स की. ठीक है, तो आपने जो मसल्स जो आपने चूज़ करने हैं ना वो आपने 3 तरह के मसल्स होते हैं जो इन्वर्जन होती है. ठीक है, वो टिबियालिस एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है. अगर वो लिगामेंट पूछेंगे तो आपने लिगामेंट को चूज़ करना है. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज पे थे हम. व्हाट इज़ द सीरियस कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, तो पेशेंट को पेपिलोमा डिवेलप हो रहे हैं, प्रोजेक्शंस हैं एपिडर्मिस पे और अबंडेंस है सीबेशियस ग्लैंड. ठीक है, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या डिवेलप हो जाएगी? बेसल सेल कार्सिनोमा डिवेलप हो जाएगा. ठीक है. 515 a lady noticed some skin changes with nodules ranging from 0.5 to 2 millimeter in size. There was a lesion in the brain upon doing CT scan and also some lesion in the abdomen was noted with some imaging technique. What is the mutation? तो इसमें कौन सी बेसिकली एक कार्सिनोमा हो रहा है? न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1. ठीक है, टाइप 1 के अंदर ये ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर 3 चीज़ें दी हुई हैं. ठीक है, इसमें एक तो फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है और नोड्यूल्स बन जाते हैं और फोकल न्यूरोलॉजिकल लीजन्स आ जाते हैं जो इस सिनेरियो के अंदर पॉजिटिव थे. ठीक है, और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके कैटारेक्ट आइज के सिम्टम आएंगे और वेस्टिबुलर डिसऑर्डर आएगा. ठीक है, वेस्टिबुलर श्वानोमा डेवलप हो जाएगा. 516 यंग गर्ल के अंदर ओरल ब्लीडिंग हो रही है, जिंजाइवल स्वेलिंग, पिटिकिया एंड लोअर लिप के अंदर पेरिस्थीजिया डेवलप हो गए. सीबीसी एंड बोन मैरो बायोप्सी एडवाइज. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? बेसिकली क्या है? ल्यूकीमिया डेवलप हो चुका है. ठीक है. 517 ए पेशेंट हैविंग टोटल एंटी एचबीसी रिएक्टिव. ठीक है, अच्छा जब भी एंटी एचबीसी पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब है कि पास्ट एक्सपोजर हो चुका है उसका. ठीक है, और अगर पेशेंट वैक्सीनेटेड है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी? एंटी एचबीसी या एंटी एचबीएस? एस पॉजिटिव होगी. ठीक है, और विंडो पीरियड के अंदर कौन सी होगी? ठीक है, ई कोर एंटीबॉडी ई. ठीक है. 518 ए पेशेंट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट शोइंग प्लियोमॉर्फिज्म ब्रेटिरेचिस. तो इसमें कौन सा एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है? विरोशियस कार्सिनोमा डेवलप हो गया. 519 एक्सटर्नल ओब्लिक मसल फ्रॉम विच लिगामेंट दैट लाई इन बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फसिस. तो इन दोनों के दरमियान कौन सा लिगामेंट होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट. 520 प्रेग्नेंट फीमेल टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स. तो वो ले रही है लेकिन क्या आज इसकी डेफिशिएंसी होगी? कैल्शियम की. अच्छा अब देखिए स्नैरियो के अंदर अब फोलिक एसिड भी है लेकिन ये बेसिकली सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है. ठीक है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप आयरन के साथ कैल्शियम देते हैं. ठीक है, तो इसमें इतनी फोलिक एसिड तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो लास्ट एमसीक्यूज में भी था कि अगर फोलिक एसिड भी ऑप्शन में होगा लेकिन आपने कैल्शियम को प्रेफर करना है. ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो. 521 which one of the following increases extracellular presence have profound effect on the heart. हार्ट के ऊपर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसका मेन इफेक्ट आता है? वो पोटाशियम होता है क्योंकि वो अगर ज़्यादा होगा तो एरिथमिया कॉज करवा देता है. फिनोटिपिकली फीमेल हैविंग प्राइमरी एमेनोरिया एंड केरोटाइपिंग XY. तो डायग्नोसिस किसका है? एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम. ये भी हम पहले कर चुके हैं. ALL का मार्कर, ये एग्जाम में MCQ आता है कि ALL का मार्कर क्या होते हैं? CD19 और 20 होते हैं. ठीक है. 524 ए पीस ऑफ शुगर इज प्लेस्ड ऑन एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग विच नर्व कैरी टेस्ट सेंसेशन. किसके थ्रू होती है? फेशियल नर्व. कौन सी ब्रांच होती है फेशियल नर्व की? कोडा टिम्पनाई. पेशेंट फेंटेड ड्यूरिंग द डेंटल सर्जरी. ठीक है, तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन वाज मेंटेन एंड सम इरिटेंट सोल्यूशन वाज स्नोड इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट सम एरिया इन द ब्रेन. तो कौन सी नर्व जो है वो टेस्ट सेंसेशन कैरी कर रही होती है? ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, फिफ्थ नर्व. 526 inspiratory RAM signals are produced from dorsal respiratory neuron. Their rate increases in response to impulse from.
तो बेसिकली उसका रेट इंक्रीज, जो रेट है वो कौन इंक्रीज कर रहा होता है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर इन द पोन्स, ठीक है। 527 5 डेज के बाद कौन से सेल्स पॉजिटिव आते हैं, मैक्रोफेजेस, और फर्स्ट 24 आवर्स और फर्स्ट 3 डेज में कौन से पॉजिटिव आते हैं, न्यूट्रोफिल्स। कार्डियोलिपिड फॉस्फोलिपिड किसके अंदर पॉजिटिव आते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। द मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर लिवर इन द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज, ठीक है। तो लिवर में पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज के अंदर उसका मेटाबॉलिक फ्यूल क्या होता है, ग्लूकोज होती है। मतलब फास्टिंग कंडीशन में उसके पास क्या चीज़ होती है, एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए ग्लूकोज। 530 कुशिंग सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या किसके साथ मसला कहाँ पे आता है, एड्रिनल एडिनोमा, इसकी कॉज होती है। न्यूक्लियस ऑफ रैम स्लीप इज, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेफी मैग्नस न्यूक्लियस। पेशेंट वाज टेकिंग वॉरफेरिन एंड आफ्टर मॉनिटरिंग INR 2.3, ठीक है, पहले वो नॉर्मल रेंज में था। अब पेशेंट को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, उसने कोई ऐसी ड्रग ली है जिसकी वजह से उसका INR काउंट 5 पे चला गया, तो वो कौन सी ड्रग है, क्लिथ्रोमाइसिन, ये P450 का इनहिबिटर है, ठीक है। 533 इन डायबिटिक इंस्पिडस द करेक्ट पैरामीटर वुड बी, तो डायबिटीज इंस्पिडस के अंदर क्या होता है, तो डाइल्यूट यूरिन होता है ना, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन है, सारा वाटर तो एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती। मीन आर्टीरियल प्रेशर किसके साथ रिलेटेड होता है, कार्डिक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस का मतलब क्या होता है, ये इससे कैलकुलेट क्या होते हैं, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस और मीन। और कॉन्फिडेंस लिमिट के अंदर टी आता है, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड एरर के साथ हम टी वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ मीन एंड स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। 536 विच anti-HIV ड्रग्स कॉजेज पेंक्रियाटाइटिस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, तो डाइडिनोसिन कॉज करवा रही होती है। विच टाइप ऑफ लॉस अकर ड्यू टू लीजन एट पोस्ट सेंट्रल गायरस, तो जो प्री सेंट्रल गायरस होता है वो सारी मोटर सेंसेशन कैरी करवाता है, जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वो सारी सेंसरी सेंसेशन कैरी करवा रहा होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे याद रख लें, प्रीम और पोस्ट से आप याद रख लें कि ये सेंसरी होती हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसके अंदर कैपेसिटी के अंदर कौन से दो वॉल्यूम आ जाते हैं, एक तो इसमें टाइटल वॉल्यूम आ जाएगा और दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये आपने सारे वॉल्यूम वाला भी एक दफ़ा टेबल रीड कर लेना है, इसमें से MCQs आ जाते हैं। 539 एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, स्टीरॉइड्स की सर्फेक्टेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक लंग अपसेस क्या होते हैं, स्टेफ ऑरियस। ग्रेनुलोमा इज अ माइक्रोस्कोपिक फीचर, इसमें किस तरह के सेल्स होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स। मीजनर्स कॉर्पसल्स डिटेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या चीज़ डिटेक्ट करती हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, पेक्सिनियन कॉर्पसल्स। नो स्पर्म इज इजैकुलेशन, अगर स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो हो जाए इसे क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया। अगर डिक्रीज हो जाए उसे कहते हैं ओलाइगोस्पर्मिया। 554 एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड इन, कौन सी ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें एंड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, COPD के अंदर। ए पेशेंट विथ C-section 5 weeks ago एट द साइट ऑफ स्कार देयर इज हार्ड टेंडर इरेगुलर स्वेलिंग, तो बेसिकली क्या हो गया, स्कारिंग, और जो सारा ऑपरेशन वाली साइड थी C-section की वो डिफॉर्मेशन हो गया सारा टिश्यू। 546 30-year-old male treated for meningitis 1 month ago came with morning headache after bilateral papillary edema, कॉज क्या होगी उसकी, हाइड्रोसेफलस डेवलप हो गया, क्यों, एक तो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस के साइन क्या आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है और बायलैटरल पेपिल एडिमा डेवलप हो गया, ठीक है। ये साइन किसके हैं, हाइड्रोसेफलस के सिम्टम्स हैं। SLE के अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, टाइप 3। स्टीडी प्रेशर डिटेक्ट किसके थ्रू करते हैं, रूफिनी रिसेप्टर्स के थ्रू। 594 पेशेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एग्जिबिट साइन ऑफ राइट साइड का हाइपरटोनिया, हाइपरटोनिया मतलब टोन इंक्रीज है मसल्स की। एग्जैजुरेटेड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स भी हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, उसमें बिबिंस्की साइन भी पॉजिटिव आता है, तो सारा राइट साइड का लीजन है, इसका मतलब है कि ब्रॉडमैन एरिया लेफ्ट साइड का लीजन आ रहा है, ठीक है। 550 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटर एल्वुलर सेप्टम, तो लंग्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, इनका दूसरा नाम क्या होता है, डस्ट सेल्स। डिसइक्विलिब्रियम रिस्पॉन्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मीनियर्स डिजीज में।
आर्टीरियल पल्स विच इज़ पाल्पेबल ऑन रेडियल आर्टरी इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी में हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर बेसिकली क्या होता है, जो आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज की वॉल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर। लिगामेंट इंजर्ड ऑन हाइपर एक्सटेंशन में कौन सा होता है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं। सब अरेकोनॉइड स्पेस में बेसिकली कहाँ ओपन, किसके दरमियान होती है, अरेकोनॉइड एंड पायामेटर के दरमियान। जीएफआर इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है, तीन कंडीशन में ये इंक्रीज होती है, अगर एफरेंट आर्टीरियोल की डायलेशन हो जाए और इफरेंट आर्टीरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर जीएफआर इंक्रीज है तो प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। डिक्रीज जीएफआर कब होगी, अब इसमें आपने हर चीज़ ऑपोजिट कर लेनी है, ठीक है। ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स ऑपोजिट आ जाएंगे और एडिशनल क्या काउंट कर लेना कि यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कितनी होती है, 1 ग्राम होती है। 557 25-year-old female newly married presented to ER with fever, burning maturation and suprapubic pain and increased white blood cell count. द ऑर्गेनिज्म इसमें कॉमनली कौन सा इन्वॉल्व है, ई कोलाई, ठीक है। अब इसमें उन्होंने सेप्रोफिटिकस वाला ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ जो फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमनली की बात की जाए ना तो आपने ई कोलाई को ही चूज करना है। 558 ट्रांसवर्स मेसोकोलोन पोस्टीरियरली किसके साथ अटैच होती है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के साथ। न्यू चैनल्स फॉर्मेशन इन ए थ्रोम्बस ऑफ ए ग्रेनुलेशन टिश्यू इज डन सो दैट थ्रोम्बस कैन बी रिमूव्ड ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। चैनल्स की बात करें ना तो वो कौन से चैनल्स होते हैं, रीकैनलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। आप थ्रोम्बस को रिमूव कर देते हैं। 560 पेशेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। आपने कोई ऐसा एनेस्थीसिया दिया है जिसने क्या कॉज कर दिया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और पेशेंट साइनोसिस डेवलप हो गई है पेशेंट में, तो वो कौन सा एनेस्थीसिया था, हेलोथेन। पेशेंट इज कॉन्शियस एडमिटेड इन आईसीयू ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, विच थिंग डिस्टर्ब हिम द मोस्ट। तो आईसीयू के पेशेंट में एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बीपिंग साउंड होती है ना वेंटिलेटर्स वगैरह की, मॉनिटर्स की। 562 ए 40 years old female having no menstruation from 6 month, तो मोस्ट लाइकली रीज़न क्या है कि उसका एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है जिसने एफएसएच और एलएच को इंक्रीज करवा दिया है। 563 ए चाइल्ड हैविंग शिजोफ्रेनिया नाउ हैव एग्रेसिव बिहेवियर, तो कौन सी अब आप उसे ड्रग देंगे, जब भी एक बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर के साथ है ना तो आपने उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, हेलोपेरिडोल, ठीक है। Type 1 hypersensitivity reaction occur due to eosinophils and this mechanism will occur too, ठीक है। तो occur to उसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, इनहेल डस्ट की वजह से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है। पेशेंट गिवन एंटीबायोटिक्स फॉर 2 months, नाउ पेशेंट हैज़ फीवर, जीआईटी सिम्टम लाइक लूज टूल, वट अदर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स विल बी मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो उसमें एंटीबायोटिक्स की वजह से उसमें क्या डेवलप हो गया, सूडो मेम्ब्रेन विद वाइट कलर के पैचेस डेवलप हो गए हैं उसमें। ए फीमेल कंप्लेन ऑफ हर बॉडी एक्स हैविंग मेलर रैश, तो मेलर रैश किसके अंदर पॉजिटिव होते हैं और उसमें एना भी पॉजिटिव है, एसएलई। पेशेंट हैव 1 नॉर्मल बेबी बट शी इज़ आरएच पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली आरएच पॉजिटिव हमने बात की थी कि सारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन है, जो सारे ब्लड के रिएक्शन है ना, उसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है, ठीक है। तो अगर आपने एसिड निमोनिक याद होगा तो सी से क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड फैक्टर्स टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, मतलब इसके थ्रू हाइपर सेंसिटिविटी होती है टाइप 2। रोटेटर कफ मसल्स के अंदर हमने क्या किया था, कैपिटल एस आई स्मॉल टी और कैपिटल एस, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस, कैपिटल स्मॉल टी किस चीज़ को डिनोट करा है, टीरियस माइनर को, और सबस्कैपुलरस। फीडिंग सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। और अगर ये डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट बहुत पतला हो जाएगा, लीन हो जाएगा, और मीडियल न्यूक्लियस जो है वो स्टाइटी सेंटर्स होता है, और अगर ये डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट ओबीस हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टीनिया सोडियम क्या होती है, प्राज़िक्वांटल ग्रेटर देन नाइक्लोसामाइड। 10 year old बॉय डायग्नोसिस विद टेपवर्म इन्फेस्टेशन, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, निक्लोसामाइड। 25 week प्रेग्नेंट लेडी विद थायरोटॉक्सिकोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है। और लेकिन इसमें बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर दिया हुआ है ना, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल है, अगर वो ऑप्शन में है तो आपने वो चूज़ करनी है।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने क्या देनी है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल। 573 सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन कॉजेज क्या करवाते हैं, वेजोडाइलेशन करवाते हैं स्केलेटन मसल्स में। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज हु शुड बी इन्फॉर्म। तो सबसे पहले आप किसे बताएंगे, क्रिस्प कहते हैं बेसिकली क्लियर इन्फॉर्मेशन आपने देनी है पेशेंट को, ठीक है। ए पेशेंट इन कार्डिक डायस्टोल हैविंग बैकफ्लो ऑफ ब्लड विच इज हियर्ड एज मर्मर, दिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मर्मर। तो ये कौन सा मर्मर होता है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है, ठीक है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर किस में आता है, एओटिक रिगर्जिटेशन में, ठीक है। और एओटिक स्टेनोसिस में अर्ली डायस्टोलिक मर्मर आता है, और माइटल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक मर्मर, और माइटल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और वीएसडी के अंदर पैन सिस्टोलिक मर्मर आता है, ठीक है। 576 IgE का लेवल रेज्ड हो जाता है, तो किस डिजीज में होता है, लिवर फ्लूक में। मस्कुलोस्केलेटन ग्रोथ अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज, ठीक है। तो एकोंड्रोप्लेजिया में बेसिकली जो आपका ग्रोथ का लेवल होता है या बोन और मसल्स का डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हायर एट द एपेक्स, एपेक्स के ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा होती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ओवरऑल एपेक्स में ज़्यादा होती है और बेस में कम होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ वेंटिलेशन की बात करें, ठीक है, तो वो एपेक्स में ज़्यादा होगी और ब्लड फ्लो जो है वो बेस में ज़्यादा होता है। एन एल्डरली मैन विद स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ द पीनस, हिस्ट्री अबाउट पास्ट, व्हाट कुड बी द कॉज, ठीक है। तो ये पिम्फोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। ब्लड फ्लो ऑफ द रीनल सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय, तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है मैकेनिज्म। रिस्ट जॉइंट की एग्जांपल कौन सी होती है, कॉन्डाइलर टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। रेडिएशन कैंसर कितने सालों के बाद कॉज करते हैं, 10 ईयर्स के बाद। गॉबलेट सेल हैज विच टाइप ऑफ एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ये सारे हिस्टो वाले MCQs आ रहे हैं बार बार। विच स्ट्रक्चर लाइक क्लोजेस्ट टू क्रस्ट सेरिब्राई, ठीक है, तो सिस्टेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंट हीट लॉस, आप कैसे करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू। द हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हेप्लॉइड DNA इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये स्पर्मेटिड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स, कहते हैं हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। एट्रियल फिब्रिलेशन रिलेटेड ECG फाइंडिंग आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो वो इरेगुलर RR इंटरवल को प्रेजेंट करते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, इसमें से ऑक्सीटोसिन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और ADH। रेटिकुलर फाइबर्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर। ए फीमेल वाज टेकिंग डोपामिन एंड अनएबल टू लैक्टेट, दिस इज बिकॉज डोपामिन इनहिबिटर्स, तो इसमें डोपामिन इनहिबिटर कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। डोपामिन बेसिकली प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा होता है। न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटेरस, तो इसमें सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली। इंसिडेंट्स क्या कहते हैं, सारे न्यू केसेस, और प्रेवलेंस में ओल्ड और न्यू केसेस दोनों आ जाएंगे। डायक्रियोटिक नोट्स बेसिकली इसमें क्या होता है, जब एओर्टा, अच्छा ये आपको कार्डिक साइकिल क्लियर है, फिर आपको ये समझ आएगी इसकी कि जब एओर्टा बहुत ज़्यादा वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता है, एओर्टा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब S1 एंड होता है, सिस्टोलिक फेज एंड होता है, तो एओर्टा की फीलिंग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही एओर्टा के अंदर अब प्रेशर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल, ठीक है, तो जब एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा है, अब जब एओर्टा वाला वाल्व क्लोज होगा तो एक नोच सुनाई देगी, उसे कहते हैं डायक्रियोटिक नोच, ठीक है। 594 न्यूरल क्रस्ट सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किससे सेपरेट होते हैं, न्यूरल ट्यूब से। वीनस ब्लड इज हायर एज कम्पेयर टू आर्टीरियल ब्लड, क्योंकि वीनस ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, हेमेटोक्रिट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू PCV वैसे ज़्यादा होते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू HCO3 हेमेटोक्रिट। एंजाइम इन सलाइवा दैट प्रिवेंट्स आयरन यूटिलाइजेशन बाय द बैक्टीरिया, तो वो कौन से होते हैं, लैक्टोफेरिन। स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ को मेजर करता है, वेरिएबिलिटी को। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है, कैवर्नस साइनस के, इसके लेटरली पड़ा होता है, कैवर्नस साइनस पिट्यूटरी ग्लैंड के लेटरली प्रेजेंट होता है। इन यूरेमिक नेफ्रोपैथी देयर इज किस टाइप का एनीमिया होता है, बेसिकली नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया, ठीक है। मतलब इसमें सेल का साइज जो है वो डिक्रीज नहीं होता, नॉर्मल ही रहता है, और सेल काउंट भी हर चीज़ नॉर्मल ही रहती है। ए मैन प्रेजेंट विद अ फीवर, राइगर्स एंड पस इन द यूरिन विच इज ट्रीटेड फॉर 2 वीक्स नाउ मोस्ट लाइकली सफरिंग, अब पेशेंट को क्या हो गया, अब उसे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस डेवलप हो गया, ठीक है। फीवर आपको बता रहा है कि आइटस कोई इन्फ्लेमेशन चली है, और 2 वीक्स की हिस्ट्री है, इसका मतलब है एक्यूट, ठीक है। 6 वीक के बाद आप उसे कहेंगे कि अब ये क्रॉनिक डेवलप हो चुके हैं, ठीक है।
चलें, यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर हैं, रिवाइज करें। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एसिड निमोनिक। अच्छा, मैं आपको इसकी ना पिक्चर सेंड कर देती हूँ। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर उसमें ए आ जाएगा, सी वाला टाइप 2 के अंदर आ जाएगा, आई है जो ये टाइप 3 में आ जाएगा, और जो डी है ये टाइप 4 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी वाला सारा टेबल सेंड कर देती हूँ रफ़ी का। ठीक है, उसमें इसका निमोनिक सारी इसकी लिखा हुआ है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, चलें आप रिप्लाई करते जाएं। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? फेमरल की। इंटरनल आइलिक, एक्सटर्नल आइलिक किसकी ब्रांच होती है? सुपरफिशियल फेमरल की होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सोप्थेल्मोस व्हिच इज ड्यू टू TSI increase T3 T4 increase T3. Type of change in metaplasia is polarity change, irreversible change, necrotic change, functional and morphological change, apoptotic. Person taken to Siachen developed dyspnea post 12 hours most likely due to secondary polycythemia, pulmonary edema, airway obstruction. ठीक है, infective endocarditis occur most commonly in immunocompetent patient, diabetic, IV drug abuser, neutropenia. Charlie. Superficial external pudendal artery emerges from saphenous opening, deep inguinal ring, superficial inguinal ring, inguinal canal, femoral canal. Which one of the following is a tributary of portal venous system? Hepatic vein, superior rectal vein, right gastric vein, inferior rectal vein, azygous vein. ठीक है, इंजरी टू pyramid function loss will be proprioception, motor loss, sensory loss, temperature loss, taste loss. Child has congenital aganglionic metacolon. What is the root value of the nerve? मेगाकोलोन हर्षपंख डिजीज में कौन से होते हैं? S2 to S4. लीजन ऑफ जेनिकुलो, अच्छा ये कल वाला है। साइक्लिक AMP सेकेंडरी रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, टायरोसिन, ANP, ACTH, TSH, ANP आएगा, ANP एंड BNP। साइक्लिक GMP है। ठीक है, एडिसन डिजीज पेशेंट प्रेजेंट इन विच इमरजेंसी कंडीशन? हाइपरटेंशन, कोमा, हाइपोकैलिमिया, हाइपरनेट्रीमिया। Child has papule rash starting from behind the ear and spread to the whole body. Most likely diagnosis is measles. Which drug decreases the TAGS level most? Niacin, atorvastatin, fenofibrate. After sweating, what is the most which one of the following is the electrolyte maintain the homeostasis? Potassium, calcium, sodium, iron. Sodium. ESR more than 100 is seen in rheumatoid arthritis, osteoarthritis, multiple myeloma, SLE, Sjogren syndrome. Multiple myeloma. Nerve supply of rectus abdominis is lower 6 thoracic nerve, subcostal nerve, last 5 intercostal nerves. Stratified cuboidal epithelium is present in lining duct of salivary gland, respiratory bronchioles, male urethra, fallopian tubes, nasal cavity. Renal tubular necrosis would result in which one of the following? Hyperkalemia, hypernatremia, hypokalemia, increased urine volume, increased concentrated urine. Hyperkalemia. Most common cause of hospital-acquired pneumonia is Staph aureus, Staph pneumoniae, Klebsiella, H. influenza, Pseudomonas. Diabetic retinopathy affect which one of the following vessels? Vein, arterioles, venules, arteries. Characteristics of cerebellar neoplasm is ataxia, hypertonia, nystagmus, diplopia, static tremors. Ataxia. Cardiolipin phospholipid is present in which one of the following organelle? RER, mitochondria, SCR, plasma membrane, Golgi bodies. SLE के अंदर कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं? टाइप 3. स्टेडी प्रेशर डिटेक्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? फ्री नर्व एंडिंग्स, गोल्जी टेंडन, ऑर्गन, मीसनर कॉर्पसल्स, रूफिनी रिसेप्टर, क्रोसी रिसेप्टर्स. ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर या बच्चे को आप कौन सी ड्रग देंगे? ड्रोपेरिडोल, डाइजॉक्सिन, हेलोपेरिडोल, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम. हेलोपेरिडोल.
Which one of the following is neurosecretive hormone? T3, cortisol, growth hormone, insulin, oxytocin. ऑक्सीटोसिन एंड ADH. चलिए यहाँ हम अपनी क्लास एंड करते हैं, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट 200 MCQs इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है. चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.